First translation or shifting property in inverse Laplace transform. So theorem is, if Laplace inverse of function of s equal to ft, then Laplace inverse of function of s minus a equal to e power at ft, और इस ft को हम लाप्लास इनवर्स ऑफ fs भी लिख सकते हैं. सो e power at लाप्लास इनवर्स ऑफ fs. सो प्रूफ, वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e power minus st ft dt इक्वल टू फंक्शन ऑफ s. सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. रिप्लेस s into s minus a in equation 1. So we have integral 0 to infinity e power minus s minus a into t ft dt equal to function of s minus a. Or we have function of s minus a equal to integral 0 to infinity e power minus st e power at ft dt. Or f s minus a equal to Laplace of e power at ft by the definition of Laplace transform. हम इस इंटीग्रल के प्लेस पर ये लिख पाएंगे, और इस L ऑपरेटर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हम लिखेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ s माइनस ए इक्वल टू e power at into ft. So question is, find Laplace inverse of f, find Laplace inverse of s plus 2 upon s square plus 4s plus 5. So आंसर देखेंगे, we have Laplace inverse of s plus 2 upon s square plus 4s plus 5. So हम यहाँ पर s square plus 4s plus 5 को हम 4 plus 1 लिखेंगे, एंड यहाँ पर ये वैल्यू को s प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. सो हमने लिखा s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 आल्सो. सो इस डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 लिखें. And by using first shifting property, we have Laplace inverse of s plus 2 upon s plus 2 square plus 1. So by first shifting property हम क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पर हमने ये लिखेंगे e power minus 2t Laplace inverse of remain value is s upon s square plus 1. So we know that Laplace inverse of s upon s square plus 1 equal to cos t. So final answer is e power minus 2t into cos t. So question is, find Laplace inverse of 3s plus 4s square upon s minus 1 into s square plus 4s plus 5. So given that this, or we have by partial fraction, so s into 4s plus 3 upon s minus 1 into s square plus 2s plus 5 equal to a upon s minus 1 plus bs plus c upon s square plus 2s plus 5. Taking LCM, and equation 1 becomes s into 4s plus 3 upon s minus 1 into s square plus 2s plus 5 equal to a s square plus 2s plus 5 plus bs plus c into s minus 1 upon s minus 1 into s square plus 2s plus 5. According to the पार्शियल फ्रैक्शन, हम यहाँ से एक आइडेंटिटी जो कि हमें न्यूमरेटर से मिलती है, और हमने लिखा आइडेंटिटी s इंटू 4s प्लस 3 इक्वल टू ए एस स्क्र प्लस 2s प्लस 5 प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस 1. मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हमें इक्वेशन 3 मिलता है, ये वाला. एंड इक्वेशन 3 से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ एस स्क्वायर s and constant term. So we have coefficient of s square a plus b equal to 4, and coefficient of s is 2a minus b plus c is equal to 3, and constant values 5a
माइनस सी इक्वल टू 0। सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद वी गेट ए इक्वल टू 7/8, b equal to 25/8 and c equal to 35/8. Then equation 1 gives s into 4s plus 3 upon s minus 1 into s square plus 2s plus 5 equal to 7 upon 8 into s minus 1 plus 25s plus 35 upon 8 into s square plus 2s plus 5. टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सो इन दोनों फ्रैक्शंस के साथ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हमने एल ऑपरेटर, एंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ऑपरेटर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो लिखा हमने लाप्लास इनवर्स ऑफ एस इंटू 4s प्लस 3 अपॉन एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 7/8 इंटू एस माइनस 1 प्लस 5 इंटू 5s प्लस 7/8 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। एंड यहाँ पर इस 7 को, इस 5 को हमने बाहर लिखा और हमने ये 5/8 लिखा है, एंड ये 7 को 5s प्लस 5 प्लस 2 करके लिखेंगे। 5 कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू s प्लस 1 प्लस 2 ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड इधर में डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। सो हमने इसको लिखा इस तरह से 1 प्लस 4, एंड इस वैल्यू को s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, ये लिखा। एंड सेपरेट डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 7/8 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1 प्लस 5/8 लाप्लास इनवर्स ऑफ 5 इंटू एस प्लस 1/s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5/8 लाप्लास इनवर्स ऑफ 2/s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4। एंड by using the first shifting property we have, अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लाप्लास इनवर्स ऑफ s इंटू 4s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 इंटू एस के प्लस 2s प्लस 5 इक्वल टू, ये डायरेक्टली e पावर t हो गया प्लस 5/8, इस प्लस 1 को रिमूव करते हैं तो e पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 5s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, प्लस 5/8 लाप्लास इनवर्स ऑफ, इस 1 को रिमूव करेंगे तो यहाँ भी e पावर माइनस टी रहेगा, एंड रिमेन वैल्यू ये वाली ये रहेगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर 2 भी है। सो हमने फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा। सो हमने लिखा लाप्लास इनवर्स ऑफ 4s s इंटू 4s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इक्वल टू 7/8 e पावर t, एंड 5 इधर आएगा 25 अपॉन 8 e पावर माइनस t, एंड रिमेन वैल्यू इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ cos 2t प्लस 5/8 e पावर माइनस t, दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ sin t, sin 2t। सो ये हमारा आंसर रहेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4। सो गिवन दैट है लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमने लिखा लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 3 माइनस 3 अपॉन s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, और बाई द लीनियरिटी प्रॉपर्टी वी हैव लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, एंड बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी we have Laplace inverse of s upon s plus 3 square plus 4 equal to e power minus 3t Laplace inverse of s upon s square plus 4। यहाँ से ये प्लस 3 को रिमूव करके हम e पावर माइनस 3t लिखेंगे बाई द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एंड यहाँ से भी प्लस 3 रिमूव होगा, इसके प्लेस पे भी हमने ये लिखा। सो हमने फाइनली लिखा लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू
ई पावर माइनस 3t लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/2 ई पावर माइनस 3t लाप्लास इनवर्स ऑफ, एंड यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी किया है, इसलिए 1/2 एंड 2 दिख रहा है। सो 3 इंटू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, एंड फाइनली we have Laplace inverse of s upon s plus 3 square plus 4 equal to e power minus 3t into cos 2t minus 3 by 2 e power minus 3t into sin 2, एंड और कॉमन करने के बाद फाइनल आंसर 1/2 ई पावर माइनस 3t 2 cos 2t minus 3 sin 2t इनवर्स ऑफ s अपॉन s पावर 4 plus 4 a power 4. So given question is this, suppose this is equation number 1 and इस इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर को कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे। सो हमने लिखा लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s पावर 4 प्लस 4a पावर 4, एंड यहाँ पर हम 4a स्क्वायर s स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो हमने लिखा s पावर 4 प्लस 4a पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर, एंड ये जो स्टार्टिंग की वैल्यूज हैं ये हमें एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर होल स्क्वायर देती हैं, माइनस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर, एंड वी नो दैट दिस इज द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस बी। सो हमने लिखा यहाँ पर इसको a माइनस बी ए प्लस बी टाइप लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2s, एंड बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन वी हैव दिस फंक्शन s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2s इक्वल टू as प्लस b अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2s प्लस cs प्लस d अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2s. Suppose that this is equation number 2. Taking LCM and we get equation 3, and equation 3 से हम सिर्फ न्यूमरेटर को लिखेंगे तो हमें ये आइडेंटिटी मिली s इक्वल टू ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्र प्लस 2a स्क्र प्लस 2as प्लस सी एस प्लस टी इंटू एस स्क्र प्लस 2a स्क्र माइनस 2s, एंड इनको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलने वाला है। एंड इक्वेशन 4 से हमें 4 अननोन की ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 इक्वेशंस मिलने वाले हैं। कोएफिशिएंट ऑफ s पावर 3 इज a प्लस c इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज b प्लस 2a इंटू कैपिटल A प्लस d माइनस 2a इंटू c इक्वल टू 0 मिलता है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट s एंड कांस्टेंट्स 2a स्क्वायर इंटू कैपिटल A प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर c माइनस 2ad इक्वल टू 0, एंड कांस्टेंट टर्म 2a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर d इक्वल टू 0। इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/4a, c इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू माइनस 1/4a मिलता है, एंड इनकी हेल्प से हमारी इक्वेशन 2 कन्वर्ट होकर 2 फ्रैक्शंस में मिल गई इस तरह से, और हमें मिलता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2as इंटू एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू 1/4a इंटू एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2as माइनस 1/4a इंटू एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as, एंड टेकिंग लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। सो हमने लाप्लास इनवर्स ऑपरेटर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने ये स्टेप लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/4a कांस्टेंट वैल्यू है, सो हम इस तरह से लिखेंगे, और हमने लिखा 1/4a लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर को ब्रेक किया ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। सो इधर माइनस 1/4a लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन
एस स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस 2s प्लस ए स्क्र, एंड वी ऑब्जर्व दैट ये वैल्यू s माइनस ए होल स्क्र है, ये वैल्यू s प्लस ए होल स्क्र है। सो हमें मिलता है 1/4a² लाप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन s माइनस ए होल स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 1/4a² लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र। And by using the first shifting property, we have Laplace inverse of s upon s square plus 2a square minus 2s into s square plus 2a square plus 2s equal to 1 upon 4a square into e power 80 Laplace inverse of a upon s square plus a square minus 1 upon 4a square e power minus 80 Laplace inverse of a upon s square plus 4a square. And we know that Laplace inverse of a upon s square plus 4a square एस स्क्र प्लस ए स्क्र इक्वल टू साइन 80। सो फाइनली हमने लिखा 1/4a² कॉमन करेंगे, रिमेन वैल्यू e पावर 80 माइनस ई पावर माइनस 80 इंटू साइन 80। सो हम जानते हैं, यहाँ पर हमें पता है ये कॉस हाइपरबोलिक 80 का जो फॉर्मूला रहता है वो कहीं ना कहीं पर ये रहता है। सो यहाँ पर ये 2 आना चाहिए। सो हमें आंसर मिला 1/2a² साइन हाइपरबोलिक 80 टू साइन 80 करेंगे तो ये वैल्यू हमें 1/2a² इंटू साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80 देने वाला है। सो करेक्शन है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s plus 1 upon s square plus 4s plus 4 into s square minus 2s plus 1. So given question is this, and by using the partial fraction we can write 2s plus 1 upon s square plus 4s plus 4 into s square minus 2s plus 1 equal to as plus b upon s square plus 4s plus 4 plus cs plus t upon s square minus 2s plus 1। एलसीएम लेने पर हमें इक्वेशन 2 मिलने वाला है, और इक्वेशन 2 से हम न्यूमरेटर लिखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलने वाली है, एक आइडेंटिटी मिली। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलता है 2s प्लस 1 इक्वल टू दिस इक्वेशन। सपोज ये इक्वेशन आपकी 3 है, यहाँ से 4 अननोन्स हैं। सो हम 4 इक्वेशंस बनाएंगे कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन करके, और हमें इक्वेशंस मिलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ s पावर 3 इज a प्लस सी इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज p माइनस 2a प्लस d प्लस 4c इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ s इज a माइनस 2b प्लस 4c प्लस 4d इक्वल टू 2, कांस्टेंट टर्म p प्लस 4d इक्वल टू 1। On solving the above equations, b have a equal to 0, b equal to minus 1 by 3, c equal to 0 and d equal to 1 upon 3. So equation 1 gives equation 1 is converted into two fractions. So equation 1 equal to मिला हमें 2s plus 1 upon s square plus 4s plus 4 into s square minus 2s plus 1 equal to minus 1 by 3 into s square plus 4s plus 4 plus 1 by 3 s square minus 2s plus 1। टेकिंग लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, सो हमने सभी फ्रैक्शंस के साथ लाप्लास इनवर्स ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया, एंड we observe that this is equal to s plus 2 square, this is equal to s minus 1 square। सो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके लिखा ये वाला फैक्टर इस तरह से, एंड बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी हैव लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s plus 1 अपॉन s square plus 4s plus 4 into s square minus 2s plus 1 equal to minus 1 by 3 e power minus 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s square plus 1 upon 3 e power t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s square। And we know that Laplace inverse of 1 upon s square equal to t. So finally हम लिखेंगे
इस तरह से, और t कॉमन करने के बाद फाइनल आंसर 1/3 e पावर t माइनस e पावर माइनस 2t, ये हमारा फाइनल आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s पावर 3 माइनस 1। So given that this, and we know that aq minus bq equal to aq minus bq equal to a minus b into a square plus ab plus b square. So by using this formula हमने इसको इसको इस तरह से लिखा। And by partial fraction we have s upon s in minus 1 into s square plus s plus 1 equal to a upon s minus 1 plus bs plus c upon s square plus s plus 1। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, एलसीएम लेंगे, ये वैल्यू मिलेगी हमें इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से बाय द रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हम सिर्फ एक आइडेंटिटी फाइंड करते हैं जो न्यूमरेटर से मिलती है, और हमने लिखा आइडेंटिटी s इक्वल टू a इंटू एस स्क्र प्लस एस प्लस 1 प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस 1। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन 3 मिला, एंड इक्वेशन 3 से कोएफिशिएंट ऑफ s पावर 3 s पावर 2 कांस्टेंट एंड एस्टेंट। सो हमने लिखा कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ s पावर 2 इज a प्लस b इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ s इज a माइनस b प्लस c इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट a माइनस c इक्वल टू 0। And on solving the above equations, we get a equal to 1 by 3, b equal to minus 1 by 3, c equal to 1 by 3। And इन इक्वेशंस को यूज करके इक्वेशन 1 हमें मिलने वाला है 1 अपॉन एस माइनस 1 इंटू एस स्क्र प्लस एस प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू एस माइनस 1 माइनस एस अपॉन 3 इंटू एस स्क्र प्लस एस प्लस 1 and 1 upon 3 into s square plus s plus 1, taking inverse Laplace transform। so हमने सभी सभी फ्रैक्शंस के साथ लाप्लास इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और हमने ये लिखा। एंड हम इसको फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिखेंगे, सेकंड को रीराइट करेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करना है, सो फर्स्ट वाले को सिमिलर लिखा, सेकंड वाले को हमने क्या किया, यहां पर इसको हमने इस तरह से रीराइट किया, और हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से s प्लस 1 बाई 2 स्क्र प्लस 3 बाई 4। हमने इसको ए स्क्र प्लस बी स्क्र फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली यहां भी ऐसे लिखा है। एंड अब फिर से हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए इस s के साथ 1 बाई 2 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है वैल्यू 1/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1 माइनस 1/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 1 बाई 2 अपॉन s प्लस 1 बाई 2 स्क्र प्लस √3 बाई 2 स्क्र, माइनस जब ये दोनों वैल्यू मिलेंगी तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये 1/6 लिखा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 बाई 2 स्क्र प्लस √3 बाई 2 स्क्र, प्लस लास्ट वैल्यू हमने 1/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 बाई 2 होल स्क्र प्लस 3 बाई 2 होल स्क्र। एंड बी ऑब्जर्व दैट लास्ट टू वैल्यूज सिमिलर हैं, सो हम इनको -1/6 प्लस 1/3 इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू मिल जाएगी। एंड ये वैल्यू यहाँ पर ये प्लस और होगा, यहाँ पर एक करेक्शन है, ये वैल्यू प्लस होगी तो ये वैल्यू हमें 1/2 मिलने वाली है। 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू हमें 1/2 मिलता है। सो हमने ये यहाँ पर पहले तो ऐसे लिखा है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया, तो हम डायरेक्ट इसको कंपाइल भी कर सकते हैं तो एक स्टेप कम हो जाएगा। और हमने लिखा बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट वाली वैल्यू तो e पावर t देता है, एंड इसमें प्लस 1/2 को रिमूव करेंगे तो e पावर -1/2 इंटू टी मिलेगा सभी के साथ। सो हमने लिखा ये वाला स्टेप। एंड वी नो दैट
लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट 3/2 t, एंड ये साइन वाला फॉर्मूला है। सो हमने लिखा फाइनली लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस माइनस वन इंटू एस स्क्र प्लस एस प्लस वन अपॉन वन इक्वल टू वन अपॉन थ्री इंटू ई पावर टी माइनस वन बाई थ्री ई पावर माइनस वन बाई टू इंटू टी कॉस अंडर रूट 3/2 इंटू टी प्लस 1/2, यहां पर ये प्लस है, प्लस 1/2 ई पावर -1/2, एंड इसको हम, क्योंकि यहां पर अंडर रूट 3/2 नहीं था, हमारा ये जो वैल्यू है इसमें ये साइन का जो फॉर्मूला होगा 1/s² प्लस a² टाइप है लाप्लास इनवर्स। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में साइन at लिखते हैं अपॉन ए भी लिखते हैं। सो ये वैल्यू अपॉन ए वाली वैल्यू है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमें ये स्टेप मिलेगा 1/3 ई पावर टी माइनस 1/3 ई पावर -1/2 इंटू टी कॉस अंडर रूट 3/2 इंटू टी प्लस 1/2 ई पावर -1/2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3/2 साइन अंडर रूट 3/2 इंटू, एंड 2 and 2 कैंसिल करेंगे, एंड ये ई पावर -1/2 एंड 1/3 कॉमन करने के बाद फाइनली हमें रिजल्ट मिलता है 1/3 इंटू ई पावर टी माइनस 1/3 इंटू ई पावर -1/2 इंटू टी कॉस अंडर रूट 3/2 टी प्लस अंडर रूट 3 साइन अंडर रूट 3/2 इंटू टी इज द फाइनल आंसर।